Good morning to all of you. Good morning. So in last class, we have discussed about a few events in 1930s. Clear? We are discussing important events during 1930s. Clear? And in the 1930s, there is another significant event, that is 1937 elections. So elections you will better understand when you will understand the themes in constitutional development topic, but still I will discuss with you a basic introduction of the elections here. Now, elections of 1937. Before entering into this topic, elections in 1937, okay, you must know a few important things, and that is one election was election of 1920. Elections of 1920. There was an act introduced by the government, that is Act of 1919. This is also known as Montagu-Chelmsford reforms. You all know this. Montagu-Chelmsford reforms. And on the basis of these reforms, elections were conducted in the year 1920. Clear? Elections were conducted in the year 1920. And here what we see is that these elections were like the start of India's election journey in India. ठीक है? इंडिया में इलेक्शन जर्नी की शुरुआत है, राइट? दिस इज व्हाट दिस इज लाइक द स्टार्ट ऑफ election journey in India. Election journey in India. And it was largely based on Act of 1919. It was the start of election journey in India, right? And basically Edwin Montagu, whom we know by the name of Montagu, ठीक है, और Chelmsford था, तो that was known as he was the catalyst for these 1920 elections. But at the same time, a movement was also in progress, and that is what? Non-cooperation movement, NCM, from 1920 to 1922. So some basic ideas I will discuss with you so that you could understand. Non-cooperation movement में what was one of the most important strategy in this non-cooperation movement? Extensive boycott. You all know this. Non-cooperation movement में there was an important strategy, and that was extensive boycott. And in this extensive boycott of legislatures was also an important part of this extensive boycott. Extensive boycott का एक हिस्सा क्या हो गया? Boycott of legislatures or saying no to council entry. एक ये दूसरा parallel development हो गया, right? Non-cooperation movement. And now when these elections were conducted, okay, so these elections that are elections of 1920, okay, these are the elections for, first is Central Legislative Assembly, that is called Imperial Legislative Council और Provincial Councils. ये दोनों के लिए इलेक्शन हुआ था. इसमें central elections, this is called Imperial Legislative Council. Imperial Legislative Council. आप इसको नेशनल इलेक्शंस कह सकते हो, ठीक है ना, जो नेशनल लेवल पे होता है. इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज नेशनल इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शंस. इसमें ये भी था. एंड द सेकेंड पार्ट वाज प्रोविंशियल काउंसिल. प्रोविंशियल काउंसिल्स, जिसको आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आज कहते हो, विधानसभा गठन, ठीक है ना. तो ये दोनों था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन एंड एट द सेम टाइम ओके द इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल. अच्छा, इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फिर से क्या था, ठीक है, एक लोअर चैम्बर एंड अपर चैम्बर, जैसा लोकसभा और राज्यसभा, इन द सेम वे लोअर चैम्बर एंड अपर चैम्बर, इन दोनों का इलेक्शन इंक्लूड था. इसके अलावा प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए. गॉट इट? एक और बात ध्यान से समझनी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इट हैप्पी with the provisions of Government of India Act of 1919? The answer is no. Indian National Congress said that this Act of 1919 had failed to recognize their political demands. कि हमारी political demands 1919 के Act से fulfill नहीं हुई है, ठीक है ना.
1920 में इलेक्शंस भी हुए. Here there were the elections of total 104 seats. कितने इलेक्शंस हुए? सेंटर की बात करें तो 104 सीट्स पे इलेक्शंस हुए. ठीक है. There were elections on 104 seats. और इसमें क्या था? 66 seats were contested और बाकी the remaining 38 they were reserved for Europeans. ये 38 seats जो थी they were the reserved seats for the Europeans. That is an important point. ठीक है ना? These seats were reserved seats for Europeans. तो ये तो सेंटर का इलेक्शन हो गया. इसमें अपर चैम्बर राज्यसभा का भी इलेक्शन था जिसमें टोटल सीट्स वेर 34 सीट्स थी और इसमें कैंडिडेट जैसे 24 पे इलेक्शंस हुए, 24 सीट्स वेर कंटेस्टेड, 24 पे इलेक्शन हुए एंड देन 5 सीट्स वेर रिजर्व फॉर मुस्लिम्स. These seats were reserved for Muslims. The remaining three they were reserved for United Provinces. 3 United Provinces के लिए था. ठीक है. और 5 for Muslims, 3 for United Provinces, 1 for Sikh. नहीं 1 था शायद United Province के. 1 for the United Provinces. Okay. 3 for the Europeans, 1 for the Sikh. 3 for the Europeans, 3 for the Europeans and 1 for the Sikh. 6. ठीक है ना? ठीक है. टोटल 34 सीट्स. सॉरी यहाँ प्रोविंशियल काउंसिल मत लिखना प्लीज. आई एम राइटिंग अबाउट अपर चैम्बर. मैं अपर चैम्बर की बात कर रहा हूँ, नॉट प्रोविंशियल काउंसिल. ठीक है ना? तो अपर चैम्बर में 34 सीट्स वेर देयर एंड डिवीजन वर लाइक दिस. 24 वेर कंटेस्टेड, 5 रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स, 1 फॉर द यूनाइटेड प्रोविंस, 3 फॉर द यूरोपियंस एंड 1 फॉर द सिख. ये रट्टा नहीं मारना है डाटा को, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ. फाइनली द एसेंस दैट आई विल डिस्कस विथ यू दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. उसको समझना जरूरी है. अब आते हैं स्टेट इलेक्शंस में. ये तो नेशनल इलेक्शन हो गया. ठीक है. इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हो गया. नेशनल इलेक्शन, सेंटर का इलेक्शन. डाटा नहीं याद रखना है, जो मैं बताऊंगा वो याद रखना है. इसके बाद आता है प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस. प्रोविंशियल काउंसिल मतलब स्टेट्स जो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, इनके इलेक्शंस, प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस. ठीक है. तो यहां टोटल सीट्स वेर 637 सीट्स. टोटल सीट्स कितनी थी? 637 सीट्स थी जिसमें से 440 सीट्स वेर कंटेस्टेड. 440 सीट्स वेर कंटेस्टेड. ठीक है. 188 सीट्स पे सिंगल कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज्ड. मतलब एक कैंडिडेट खड़ा हो गया, उसका किसी ने विरोध नहीं किया और वो जीत गया. सिंगल कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज्ड. ठीक है. 38 were reserved for Europeans. 38 seats were reserved for Europeans. And lastly, 6 seats had no candidates. 6 seats had no candidates. 6 seats पे candidates ही नहीं थे. Why no candidates? Because there was an appeal from Indian National Congress. There was an appeal for Gandhi that you will have to do boycott of काउंसिल्स ऑल्सो. हमें क्या करना है? काउंसिल का भी बायकॉट करना है. ध्यान से समझना है इस बात को. अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन रुक जाएगा. इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन वैसे भी बहुत कम है. ठीक है ना? बहुत कम है. डिफरेंट क्लास ग्रुप्स आर देयर, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स आर देयर. सीट्स आर रिजर्व तो इलेक्शन होगा और गवर्नमेंट बनेगी. मेरी बात समझ गया ना? तो यहाँ पे 6 seats had no candidates. Why? Read this. Because 6 seats had no candidates due to non-cooperation movement, due to the appeal. And what is the appeal? Boycott of legislatures. Legislatures को boycott करने की अपील जो थी, इस वजह से seats. इसी तरह से I am giving you a particular example that West Godavari district, आज आंध्र प्रदेश जिसको कहते हैं, ठीक है, दैट इज इन साउथ इंडिया. ओके. द पीपल आर फिल्ड विथ नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स. वहां पे लोग क्या थे? नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स, पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स से भरे हुए थे. एंड व्हाट दे डिड, ओके, दे डिस्प्लेड देयर एंथुसियाज्म,
support for the Congress and the appeal for the Congress, ठीक है ना? And they decided that we will boycott what? Elections. हम क्या करेंगे? Elections को boycott करेंगे. तो जो नॉमिनेशन फाइल नहीं करना या जिन कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल कर दी है उन कैंडिडेट्स ने भी अपनी नॉमिनेशन क्या कर ली? वापस ले ली. दैट इज अ सिग्निफिकेंट एग्जांपल. नाउ व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस एंटायर डिबेट? एसेंस क्या है? इन वन और टू लाइन, दैट 1919 based on the act of 1919 elections were conducted in which year? 1920. These elections were conducted for center as well as provinces, दोनों लेवल पे हुआ. For center, the elections were conducted for Imperial Legislative Assembly. इसमें हम कोई डाटा नहीं याद कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस बात को. And there were also elections for the upper chamber, that is Council of States. Provinces में भी election हुआ. Got it? This is the simple information. Now what we are saying, that non-cooperation movement was in progress. Indian National Congress made an appeal for extensive boycott. ठीक है ना? So we see that at provincial level, 6 seats were remained vacant because of due to this appeal. It means Indian National Congress did what? They did not opt for council entry. Clear? Under the influence of this mass movement, some seats remain vacant. South India, okay, you can say that the place is Andhra Pradesh today, that is West Godavari district. The people filled with nationalist sentiments, they just declined or they denied to file the nominations for the candidates. This is the डेवलपमेंट. यही क्या है? डेवलपमेंट. ठीक है ना? और इस पूरे के पूरे इलेक्शन में अगर मैं बताऊं कि जो गवर्नमेंट बनी सेंटर में, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की गवर्नमेंट है, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है. अगर मैं उस गवर्नमेंट में जैसे कुछ नेम्स आपको बता रहा हूं, यू डोंट नीड टू राइट दोज नेम्स बट इट विल गिव यू एन आइडिया. फॉर एग्जांपल, होम मेंबर वाज विलियम हेनरी होर विंसेंट, मुझे भी याद नहीं है, देख के बता रहा हूं. फाइनेंस मेंबर वाज मैल्कम हेली. Finance member again was Basil Philot Blackett. Commerce and Industries member was C.A. Ains. Okay. Foreign Secretary Dennis Bray. PW Secretary Sir Sidney Cruikshank. Army Secretary Ernest Burden. सारे के सारे कौन भरे हुए हैं? अंग्रेज. दो नाम ऐसे थे, फॉर एग्जाम्पल वन नेम वॉज लॉ मेंबर, दैट वॉज टीबी सप्रू, एंड रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर मेंबर वॉज BN शर्मा. अब आप बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, दिस इज व्हाट? सेंटर. सेंटर का भी जो लोअर चैम्बर है वो, उसकी हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की. नाउ टेल मी, आर दीज पीपल इंडियंस हु आर इन द गवर्नमेंट? क्या ये लोग इंडियंस हैं जो सरकार में है? नहीं, गिने चुने लोग इंडियंस हैं. जब आप प्रोविंसेस में आओगे तो वहां पे इंडियन मेंबर्स हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे यूरोपियन मेंबर्स हैं. कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार तो आपने बना दी एक्ट ऑफ 1919 के बेसिस पे, बट इसमें सेल्फ गवर्नमेंट कहां है? वेयर इज स्वराज? मेरी बात समझ गए ना? इट इज अगेन ब्रिटिश राज. जो नेम्स मैंने बताया, होम मेंबर, फाइनेंस मेंबर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेंबर, फॉरेन सेक्रेटरी, PW सेक्रेटरी, सारे के सारे कौन है? अंग्रेज हैं. नाउ दे विल मेक अ, जैसा होता है ना कि हम कुछ सेटायर करते हैं, नाउ दे विल से दैट दिस गवर्नमेंट इज अगेन माई बाप की सरकार. माई बाप की सरकार मीन्स व्हाट? मेरी बात समझ गया ना? जैसे मॉडरेट शुरू में कहते थे, वी बिलीव इन द okay civilizing mission notion of the East India Company, so they are saying that this is again what? Okay, this is माई बाप की सरकार. मेरी बात समझ गया ना? इसमें स्वराज जैसी चीज है ही नहीं. एंड व्हाट वी सी दैट, ओके, गॉट इट? अच्छा, फ्रेम. ओके, मेरी बात को समझना, यहाँ पे हमें डाटा नहीं रटना है. मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि ये सरकार तो फिर से माई बाप की सरकार होगी. इसमें स्वराज कहाँ है? वेयर इज सेल्फ रूल? एंड दैट इज वाई non-cooperation movement has the political objective of what? कुछ रिलेट कर पा रहे हो? स्वराज विद इन 1 ईयर. इसीलिए हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वराज. और हमने इलेक्शंस को बायकॉट भी इसीलिए किया है कि ऐसे इलेक्शन में, ऐसे काउंसिल में हम एंट्री करके करेंगे क्या? ठीक है, वी वांट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मोर एंड मोर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द
इंडियंस, ठीक है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपने बना दिया है कि घुमा फिरा के सारे उसमें अंग्रेज भर दिए। इन द सेम वे 1923 में जब दोबारा इलेक्शन होगा, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी which is like the parliamentary wing of Indian National Congress? एग्जैक्टली exactly. यानी काउंसिल के अंदर एंटर करके जो डिमांड रेज करनी है वो क्या है? डिमांड फॉर स्वराज, ठीक है ना। 1923 के इलेक्शंस में भी 1923 के इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस विल नॉट पार्टिसिपेट, बट स्वराज पार्टी विल पार्टिसिपेट, लिबरल पार्टी इज देयर, रॉयलिस्ट पार्टी इज देयर, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं, जैसे ब्राह्मण्स हैं, सिख हैं, ठीक है, मुस्लिम्स हैं, ठीक है। ऐसे इंडिपेंडेंट पार्टी है, देयर आर सो मेनी पार्टीज। इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां पे नहीं थी। अब आप बताओ 1928 नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट ने क्या डिमांड किया था? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था कि इंडियन पार्लियामेंट की जब आप बात कर रहे हो, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर, इनकी बात कर रहे हो, सो हियर दिस विल एक्ट लाइक अ इंडियन पार्लियामेंट, और ये सारा का सारा सिस्टम किसके हाथ में होना चाहिए? इंडियंस के हाथ में होना चाहिए। दैट वाज द डोमिनियन स्टेटस, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ ऐसे चल रहा था। 1934 में फिर से इलेक्शंस होते हैं, जो मैंने बताया था आपको इन द लास्ट क्लास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से जोड़ूंगा तो और बेटर आप समझ पाओगे, यहाँ कुछ चीजें बहुत क्लियर नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द टाइम पीरियड वाज 1930 to 1934, and what we see that general elections were again conducted in British India in the year 1934. इसके बाद फिर से यहाँ क्या होने वाले हैं? इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस इन द ईयर 1934। और यहाँ जो 1934 में इलेक्शंस होने वाले थे, दीज वेर द इलेक्शंस, ओके, फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये सेंटर का इलेक्शन था। तो यू कैन राइट हियर दीज वेर द इलेक्शंस फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये किसका इलेक्शन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है ना। यहाँ जनरल सीट्स भी होती थी, रिजर्व सीट्स भी होती थी, ओके। 1934 इलेक्शंस, मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड, मेनी पार्टीज पार्टिसिपेटेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं? हाँ, यहाँ पार्टिसिपेट किया था, पता ही आपको, बता चुका हूँ। कांग्रेस, नेशनलिस्ट पार्टी, पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट्स, यूरोपियंस, बहुत सारे ऐसे पार्टीज होंगी। तो ये सेंटर का इलेक्शन है। इसी तरह से द नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्शन इज 1937 इलेक्शन। 1937 elections is the next set of elections, and these elections were provincial elections. Right, this, these elections were provincial elections, ठीक है। these elections were provincial elections. ये election जो थे, they were the provincial elections, provincial elections. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मैं कुछ चार्ट और ये सारी चीजें यूज करूंगा, नंबर ऑफ सीट्स, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा, जिससे आपको ब्रिटिश पीरियड में जो इलेक्शंस हुए उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप कुछ बेसिक बातों को समझ पा रहे हो। अब ये जो इलेक्शंस हुए, दीज इलेक्शंस वेर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विच एक्ट? नया एक्ट कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बेसिस पे इलेक्शंस हुआ 1937 में, एंड द इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन 11 प्रोविंसेस। 1937 इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन 11 प्रोविंसेस। वो टोटल 11 प्रोविंसेस कौन सी थी? ठीक है, ये मैंने आपको पहले एक ट्रिक भी बताया है जिससे आप याद रख सकते हो। विच वेर दीज 11 प्रोविंसेस, बता रहा हूँ आपको कि 11 प्रोविंसेस कौन थी। यू कैन राइट डाउन, बट you can easily remember the name of these 11 provinces. कैसे? तो सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसीज कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो इन तीनों को तो लिख दो सबसे पहले। वन इज व्हाट? बंगाल, द सेकेंड इज व्हाट? मद्रास, द थर्ड इज व्हाट? बॉम्बे। तो 1 2 3, 3 प्रोविंसेस तो यही हो गए। अच्छा, ये भी वर्ड आप एक साथ यूज करते हो, पहले एक ही था, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, यूज करते हो ना। तो बंगाल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फोर्थ इज व्हाट? यहाँ पे लिख दो बिहार, एंड फिफ्थ प्रोविंस इज व्हाट? उड़ीसा। कितना आसान है। आउट ऑफ 11 कितने प्रोविंसेस हो गए? ये हो गए आपके टोटल 5 प्रोविंसेस।
इसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस जो आज यूपी है, सेंट्रल प्रोविंस जो एमपी छत्तीसगढ़ है, ये तो भूलना ही नहीं है, ये बहुत आसान है। सो रेड दिस 6 प्रोविंसेस यूनाइटेड प्रोविंस, 6 क्या हो गया यूनाइटेड प्रोविंस, एंड 7th प्रोविंस क्या हो गया, दिस इज व्हाट सेंट्रल प्रोविंस। तो ये भी हमने लिख दिया, यूनाइटेड प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। इसके बाद बताओ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एनडब्ल्यूएफपी होगा कि नहीं, यस एनडब्ल्यूएफपी, दिस इज आल्सो इजी। तो 8 प्रोविंसेस एनडब्ल्यूएफपी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ से एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर आते थे जिनको हम कहते थे खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। नाउ कितने हो गए 8। इसके बाद बताओ क्या पंजाब को लिखेंगे, सिंध को लिखेंगे, यस वी कैन राइट पंजाब, वी कैन राइट सिंध, वी कैन राइट पंजाब, वी कैन राइट सिंध। इसके बाद क्या नॉर्थ ईस्ट में भी आना पड़ेगा, एंड व्हेन यू विल कम टू नॉर्थ ईस्ट, असम, असम विल बी वन प्रोविंस, तो इन नॉर्थ ईस्ट देयर इज वन प्रोविंस दैट इज व्हाट असम, तो यहाँ क्या हो गया असम हो गया। तो इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन 11 प्रोविंसेस। अब आपको याद हो जाएगा बंगाल बिहार उड़ीसा, बॉम्बे मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्ट, फ्रंटियर प्रोविंस एंड असम। तो इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन दीज 11 प्रोविंसेस, ठीक है ना, 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए। नाउ INC will participate in these elections or not? Yes, INC will participate. What about Gandhi? ठीक है, Gandhi don't like this. Gandhi will not address a single meeting in the election, and Gandhi will say that, okay, हर आदमी फ्री है अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। Got it? Total seats were 716 seats. अगर provincial seats की बात करें, sorry, 1161 seats were the total seats, and 716 seats were okay won by Indian National Congress, won by Indian National Congress। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। गॉट इट, इंडियन नेशनल कांग्रेस was the largest party here, okay। now जो इलेक्शन होगा, अब इसके बाद देखो लार्जेस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनकर उभरी। अब कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट एट दिस इन 5 प्रोविंसेस, मतलब अपने दम पे सरकार बना लिया, बाकी में कोalition होगा। 5 प्रोविंसेस, ठीक है, 5 प्रोविंसेस कांग्रेस गवर्नमेंट्स। इसके बाद कुछ प्रोविंसेस में इनकी कोalition गवर्नमेंट्स आएंगी, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। देन टोटल 7, राइट, टोटल 7 प्रोविंसेस कांग्रेस केम टू पावर। 5 में तो सिंगल हैंडेडली बना लिया गवर्नमेंट, राइट। टोटल 7 प्रोविंसेस कांग्रेस केम इन पावर। तो 7/11, तो सरकार टोटल कितने में बनाया, 7/11। 5 में तो फुल मेजोरिटी की और 2 में कोalition के साथ गवर्नमेंट बनाया इन्होंने, ठीक है ना। जिसमें इंक्लूड क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ओके, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी एक इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, और ठीक है उड़ीसा। तो ऐसे टोटल 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है ना। बंगाल में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, बट ये सरकार नहीं बना पाई। बंगाल में एक पार्टी थी जिसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी, उसने कोलिशन गवर्नमेंट बनाया, किसके सपोर्ट लेके, मुस्लिम लीग को सपोर्ट लेके। लेकिन ये गवर्नमेंट लंबे समय तक चल नहीं पाई, ठीक है, मुस्लिम लीग ने अपना सपोर्ट खींच लिया, और फिर इसके बाद जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर सरकार बनी, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, राइट। बंगाल, बंगाल में क्या था, राइट, बंगाल, राइट। INC was the single largest party with 54 seats. INC was the single largest party with 54 seats. बंगाल और पंजाब प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है, that's why I'm discussing. INC was the single largest party with 54 seats. ठीक है, right. But INC was unable to form government. But Indian National Congress was unable to form government. Indian National Congress सरकार नहीं बना पाई. Got it? INC was unable to form government. Right, next point. Okay.
कृषक प्रजा पार्टी KPP formed a coalition government with the support of Muslim League. KPP, कृषक प्रजा पार्टी KPP formed a coalition government with the support of Muslim League. और देखो जो प्रोविंसेस में चीफ मिनिस्टर होता था उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था उस समय। मेरी बात समझ गया ना? जैसे प्रोविंशियल हेड जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको क्या कहा जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? हेड कौन था? राइट दिस नेम इज इंपॉर्टेंट। द नेम इज ओके AK फजलुल हक। AK फजलुल हक ये कृषक प्रजा पार्टी के लीडर थे। AK फजलुल हक AK फजलुल हक वाज द लीडर ऑफ कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है। बाद में क्या हुआ? रेड दिस लेटर मुस्लिम लीग टेक बैक इट्स सपोर्ट। लेटर मुस्लिम लीग टेक बैक इट्स सपोर्ट एंड देन इंडियन नेशनल कांग्रेस form government with the support of Hindu Mahasabha. Then Indian National Congress will form government with the support of Hindu Mahasabha. Hindu Mahasabha. अच्छा, बंगाल में वो पार्टीशन वाला मुद्दा भी है ना, ईस्टर्न पार्ट, ध्यान रखना। यहाँ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल बनेगा अखाड़ा। पार्टीशन होगा तो उसका एक हिस्सा जाएगा पाकिस्तान में, ईस्टर्न पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आज है। ठीक है। कॉम्युनल राइट्स भी बहुत ज्यादा होंगे बंगाल में। जब डायरेक्ट एक्शन डे की बात बताऊंगा तो वहां आप ये बात समझ पाओगे। एक और एग्जांपल लिख लो, पंजाब। पंजाब में क्या हुआ? राइट, दिस एग्जांपल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। पंजाब, राइट, यूनियनिस्ट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। यहाँ पे किस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई? यूनियनिस्ट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। यूनियनिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। यूनियनिस्ट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट हेड कौन था? सो द आंसर इज राइट, सिकंदर हयात खान। ठीक है, सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? पंजाब का एपिसोड, बंगाल का एपिसोड, इसके पीछे एक रीजन है। और रीजन क्या है? 1937 के इलेक्शन ने ये प्रूव किया कि जो रिजर्व्ड सीट्स फॉर द मुस्लिम्स हैं उस पे न तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई और न ही बहुत अच्छा मुस्लिम लीग परफॉर्म कर पाई। वहां पे परफॉर्म किसने किया? जो प्रोविंशियल, जो स्टेट लेवल की पार्टीज थी ना, उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। रीजनल पार्टीज, जैसे अभी क्या मैंने नाम बताया, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। तो पूरे फैक्ट से जो एसेंस है, ओपिनियन है, उसको ग्रास्प करो। और ओपिनियन क्या है? दैट दिस इलेक्शन, 1937 election demonstrates that, write this point, and this is the essence, write this point, that 1937 election demonstrates that, 1937 election demonstrates that, demonstrates that 1937 election demonstrates that, okay, क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? तो देखो, 482 रिजर्व मुस्लिम सीट्स, 482 रिजर्व मुस्लिम सीट्स हो गई। ठीक है, एक डाटा बता रहा हूं जिससे आप समझ पाओगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कंटेस्टेड ओनली 58 आउट ऑफ 482। 482 में कितने पे कंटेस्ट किया था? 58 पे। और 58 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट win, Indian National Congress won how many seats? 26 seats, 26 seats। 482 में से 58 पे कंटेस्ट किया और सीट्स कितनी जीती? 26। अगर इस डाटा को हम हटा लें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की परफॉर्मेंस को हिस्टोरियंस विल राइट शानदार परफॉर्मेंस। अगर इस डाटा को हमने ओपन कर दिया सो द परफॉर्मेंस इज पुअर। परफॉर्मेंस क्या हो गया? पुअर हो गया। मेरी बात समझ गया ना? ये चीज है। इन द सेम वे, इन द सेम वे व्हाट वी सी दैट मुस्लिम लीग, जैसे अगर हम ये कहें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने केवल और केवल टोटल 6% के आसपास सीट्स अचीव करी थी, मुस्लिम लीग ने 25%, अगर हम डाटा को देखें तो। एंड लास्टली द रीजनल मुस्लिम पार्टीज, रीजनल
मुस्लिम पार्टीज, ठीक है, इनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था. रेड दिस. ओके, देयर परफॉर्मेंस वाज गुड. रीजनल मुस्लिम पार्टीज, देयर परफॉर्मेंस वाज गुड. नाउ व्हाट डज इट इंडिकेट? क्या इंडिकेट करता है? ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम मासेस को ये कन्विंस करने में फेल रही कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ ऑल क्लास पार्टी. हमें कमियां तो ढूंढनी पड़ेंगी ना. क्या मैं गलत कह रहा हूं? ठीक है. इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी, और फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाट इज योर आइडियोलॉजी? दैट दिस इज एन ऑल क्लास, दिस इज ऑल क्लास पार्टी. So you must be able to communicate this message to the Muslim masses. And here what we see that Indian National Congress failed to communicate this message to the Muslim masses. And that's why regional Muslim parties are performing well. In the same way, Muslim League also did what? Muslim League also fails to communicate Muslim masses that Muslim League is the sole party which will take care of the मुस्लिम इश्यूज. मुस्लिम लीग भी फेल हो गई मुस्लिम मासेस को कन्विंस करने में कि मुस्लिम लीग ही वो पार्टी है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का भला करेगी. ध्यान से समझना इस बात को. तो यहां तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वीकनेस है. हालांकि हिस्टोरियंस विल राइट दैट दिस इज अनइंटेंशनल, ये अनइंटेंशनल है. दूसरी तरफ एक विंग जो है वो कौन सा विंग है? हिंदू महासभा का, आरएसएस का. एंड दे विल डू व्हाट? जिस तरह से मुस्लिम लीग वाज कम्युनलाइजिंग, ओके, मुस्लिम मासेस को या मुस्लिम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, इन द सेम वे हिंदू महासभा, आरएसएस, जैसे मुस्लिम लीग क्या धीरे धीरे मांग करेगी आगे हम देखेंगे. टू नेशन थे अभी नहीं है, बट 1940 में आएगा. ठीक है, सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम की मांग कर रहे हैं. दीज हिंदू पार्टीज विल से व्हाई सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम? क्यों? क्या हक बनता है आपका? यू आर आउटसाइडर्स, सीधा ये बोलेंगे. और जब 1940 में टू नेशन थियरी की बात आएगी तो दे विल टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड इंडिया. तो कहीं ना कहीं हिंदू सेंटिमेंट्स को, ये मुस्लिम सेंटिमेंट्स को मुस्लिम लीग कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी आफ्टर 1937 इलेक्शन. ओके, और इससे क्या होगा? कम्युनलिज्म कम होगा कि बढ़ेगा? कम्युनलिज्म बढ़ेगा. सो इट्स ऑल इलेक्शन एंड इलेक्शन रिजल्ट्स. आफ्टर 1937 यू विल सी दैट द कम्युनलिज्म विल इंक्रीज. 1940 तक आते आते टू नेशन थियरी का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा. तो मुस्लिम लीग को अगर अपनी आइडेंटिटी बचानी है तो उसको रेडिकल कम्युनल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा. ध्यान से समझो. शुरू से ही मुस्लिम लीग इज सेइंग व्हाट? दैट वी आर अ पार्टी ऑफ मुस्लिम्स. बट 1937 1906 में बनी थी, दिस इज 1937. आप प्रूफ नहीं कर पाए कि यू आर द ओनली पार्टी विच रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम क्लासेस. सो फॉर दैट रीजन, in order to get the political mileage, finally what Muslim League will do? Muslim League will try to communalize the politics. वो पॉलिटिक्स को कम्युनलाइज करने की कोशिश करेंगे, रेडिकल से रेडिकल इश्यूज को रेज करने की कोशिश करेंगे. एंड दैट्स व्हाई 1940 वी सी व्हाट? दैट देयर इज डिमांड फॉर व्हाट? ओके, अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान. दूसरी तरफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं. कॉमर्स, इंडस्ट्री, लैंड होल्डर्स, लेबर्स, मुस्लिम, सबके लिए रिजर्व सीट्स का भी प्रोविजन है. तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग व्हाट? ओके, अलग अलग क्लासेस को अपीज कर रही है. ठीक है, और उसका रीजन क्या है? कि ऑन गोइंग नेशनल मूवमेंट को वीक करना. बट वॉट एवर हैपेंड इन 1937 इलेक्शन, वी सी दैट नाउ कांग्रेस गवर्नमेंट्स आर देयर इन 7 प्रोविंसेस. 7 में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है ही है. ठीक है, 2 में तो कोalition का हेल्प लेना पड़ा. एंड नाउ कांग्रेस में प्रोविंस में जो चीफ मिनिस्टर आज जिसे हम कहते हैं, दैट विल बी द प्राइम मिनिस्टर. नाउ इन यूपी गोविंद बल्लभ पंत वाज द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, बिहार में श्री कृष्णा सिन्हा वाज द प्राइम मिनिस्टर. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर. बॉम्बे में बीजी खेर वाज द प्राइम मिनिस्टर. उड़ीसा में हरे कृष्णा महताब वाज द प्राइम मिनिस्टर. मद्रास सी राजगोपालाचारी वाज द प्राइम मिनिस्टर. एंड सेंट्रल प्रोविंस डॉक्टर खरे वाज द प्राइम मिनिस्टर. नाउ in councils, the Indian leaders wearing white kurta pajama, they are entering into the councils, फाइल वाइल लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन. देखो, इसका एक मैसेज तो आएगा ना इंडियन के दिमाग में. हम इंडियंस को क्या लगेगा? कि लग रहा है कि भारतीय लोगों की सरकार बन गई. So this will boost the confidence of the Indian people. We will realize that yes, our Congress ministries have been formed. Our leaders are now making legislations. आम आदमी को ये बात समझ में आएगा.
और इंडियन नेशनल कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये चीज मोटिवेटिंग इसलिए है क्योंकि अब उन्हें ये लगने लगेगा कि अगर हमने यहाँ तक का सफर तय कर लिया तो आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजों के प्रभाव से अलग हटके एक अपनी नई सरकार बना सकते हैं. सो दिस विल मोटिवेट द masses as well as the leaders also. Indian National Congress people also. Now Congress ministries were at work. Congress ministries were working. Okay, they were working on various issues. Okay, they were raising all those questions that were the concerns of the Indian people. They were talking about the peasant welfare. They were talking about the labor welfare. They were talking about how to improve the condition of women in the society. They were talking about what should be the education policy in India. Okay, each and everything is now discussed by the Congress ministers. All this is happening. 1937 election onwards, there is Congress ministries. Now what we see, I have already discussed 1936 में Congress sessions किया था ना last class में. Then special session, regular session, Jawaharlal Nehru, then Haripura, then Tripuri, all these developments. Now in 1930s, what is happening here? That Indian National Congress, which voice is becoming more and more prominent? The socialist voices. Which programs are gaining more and more importance? So you can say that the alternative programs, not Gandhian methods. Now the alternative methods are gaining popularity. Subhash Chandra Bose was just talking about this alternative method. Now, sorry, earlier Jawaharlal Nehru talked about this alternative method, and now Subhash Chandra Bose was also talking about this alternative method. Subhash Chandra Bose भी इस alternative method की बात कर रहे थे. मेरी बात समझ गया ना? और वो alternative method क्या था? That Gandhian method are now not successful in ensuring the freedom of India, so we should change our strategy. ठीक है ना? We should change our approach. ठीक है? And that become one of the reason for the Tripuri crisis, which I have already discussed with you. इतनी बात आपको समझ में आई? Tripuri crisis, Haripura session and Tripuri session you all know. Now there is another important event, and that is, read this, outbreak of Second World War. Third important event is what? Outbreak of Second World War. Or a Second World War starts when? 1939. Outbreak of Second World War. Elections were conducted when? 1937. That is elections of 1937. And between this period, what we see? Between this period, we see Congress ministries at work. Between this period, we see what? Congress ministries at work. ठीक है ना? Elections were conducted, elections of 1937. And between this period, we see that the Congress ministries were at work. Congress ministries were at work. Got it? Okay. Between this period, Congress ministries were at work. Now, 1939, Second World War starts. And this is an international event. And Britain is a party in this Second World War. We all know this. The date is 1st September 1939. Britain was a party, ठीक है, supported by France. On other side, Germany, Italy. ठीक है. This was later joined by Russia. Later joined by Russia. World history में बता चुका हूँ equations. And here, this is later joined by Japan. This is later. This group is later joined by US. ठीक है ना? तो ये एक ग्रुप है. Group of nations. World War starts. Now, Britain will make an announcement. Britain will make an announcement. Now Britain will make an announcement. And what is the announcement? The announcement is that India is with Britain in Second World War. Yani India is a party in Second World War and India is with Britain. ये announcement कर दिया कि India is with Britain in Second World War. Second World War में India is with Britain. It means India is also a party.
India is also a party. India is with Britain in Second World War. And this was a very important announcement. Got it? Okay. In this announcement, the British government did not consult Congress ministries. ये गलत है कि नहीं? आप बताओ, आप कह रहे हो कि आप सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहे हो, कहाँ सेल्फ गवर्नमेंट है? You have taken a very important decision, and while taking this decision, you have not consulted the Congress ministries, and this is an insult to all the political parties. This is an insult to the provincial governments. This is an insult to the British Indian government. ये एक सीधा सीधा क्या है? Insult है. Now on this question, what will happen? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज विल रिजाइन. कहा फिर हमारे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में रहने का कोई मतलब नहीं है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हाउ यू कैन टेक दिस डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग. ओके, सो यू राइट दिस दैट ओके, this was an important question and Congress ministries were not consulted. Congress ministries were not consulted. Congress ministries were not consulted while taking this decision. Congress ministries were not consulted while taking this decision. Congress ministries were not consulted while taking this decision. I read this. And on this question, the Congress ministries resigned. On this question, Congress ministries resigned. On this question, Congress ministries resigned. तो ये क्या था? विरोध प्रकट करने का एक तरीका था. दिस वॉज अ मीडियम टू एक्सप्रेस योर ओके dissatisfaction. कि हमने क्या किया? रिजाइन कर दिया. तो this happened. Now the entire Indian National Congress, since we are talking with one perspective of one important political party, और भी parties है, but देखो क्या है. Now what is the opinion? What is the opinion of nationalist leaders in this situation? So there were opinions you can divide into three groups or three categories. Read this. We can divide the opinions into three groups or three categories. And what is that category? We can divide the opinions into three groups or three categories. वो क्या क्या है? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है. थ्री ग्रुप्स में ओपिनियंस को डिवाइड कर दिया. देखो, some Congress members were saying that India should take advantage of this situation. It means that Britain is a part of Second World War. Akash, are you asking a question? Mm-hmm. Hmm. तो वही तो बताने जा रहा हूं ना कि ये विरोध का तरीका है. दिस इज द बिगिनिंग. ठीक है ना? अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी, ठीक है, देखो दो तीन चीजें इसमें समझो आकाश. पहली चीज, पहली बात, इफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज मेड यू अ पार्टी, then you are aligned with the war. Then what will happen? Germany, Italy may invade India also. Got it? And what will happen? We already are suffering from colonial exploitation. And if we will be a part of war, then our economy will be collapsed. At the same time, we are fighting Indian national movement also. ठीक है? और ब्रिटेन की लड़ाई जर्मनी से है, ब्रिटेन की लड़ाई इटली से है, तो इंडिया को उससे क्या? बहुत सीधी सी बात है. वी वॉन्ट वॉट? फ्रीडम. तो वॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड डू? ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर हमारा साथ लेना है, if British government wants our help and support in Second World War, so what British government should do first? First, British government should make India independent. And now Indians will take an independent decision that they will support Britain in Second World War or not. ठीक है ना? This decision should be taken by the Indians themselves. This is a very important question. मेरी बात समझ गया ना? आप गुलाम लोगों की मदद क्यों चाहते हो? अगर आप हमारी मदद चाहते हो तो पहले तो हमें आजाद करो. मेरी बात समझिए ना. वी आर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस. वी आर फाइटिंग फॉर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. कब से फाइट कर रहे? 1930 से. सो फर्स्ट यू शुड डू व्हाट? या तो आपको हमसे पूछना चाहिए था और हम बताते कि हम आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, या फिर आपको क्या करना था?
आपको पहले इंडिया को इंडिपेंडेंट करना था, एंड नाउ इंडियंस विल डिसाइड दैट दे विल सपोर्ट ब्रिटेन और नॉट। और वॉर में खुद को ले जाना ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती, और ये बात हम बहुत बेहतर समझ रहे थे, ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप को ज्वाइन कौन करेगा? जर्मनी और इटली को, जापान। और जापान बहुत खतरनाक था उस समय, ठीक है, इट वॉज मिलिट्री पावर। मतलब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो स्टेटस हासिल करने में ब्रिटेन को 100-150 साल लग गए थे, वो जापान ने 25 से 30 साल में हासिल कर लिया था। इससे आप समझ सकते हो। तो जापान एक मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर के साथ साथ जापान वाज आल्सो एन imperialistic power, and Japan was making claims over colonial possessions or territories of Asia that were in control of European powers. जापान कॉलोनियल और imperialistic claims भी कर रहा था, जैसे चीन में घुसा पड़ा था वो। उसका कहना था भाई एशिया में यूरोपियन पावर्स मैं हूं ना, ठीक है, वो शाहरुख खान की मूवी है ना, मैं हूं ना, वही वही हाल जापान का था, कह रहा था मैं हूं ना। अब हम तो फंस गए थे, तो हमने क्या किया? हमने सीधा मास्टर स्ट्रोक दांव खेला, कांग्रेस मिनिस्ट्री इज डिसाइड। अच्छा, ये इंटरनेशनल न्यूज में जाएगा कि नहीं जाएगा? जर्मनी को पता चलेगा, इटली को पता चलेगा, अरे इंडियंस नहीं है ब्रिटिश ब्रिटेन के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, हमने सेफ गेम खेला। मेरी बात समझ गया ना, है ना? तो ये इतनी सी बात है, ठीक है, ये तो ये हमने विरोध किया। नाउ ओपिनियंस आर डिवाइडेड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, some people will say that this is second world war and Britain is involved in second world war, so India should take advantage of Britain's difficulty। अगर आपका दुश्मन, ठीक है, मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो यही तो टाइम है, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर वॉर नहीं होता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो इंगेज हो जाते हैं, बाकी टाइम में हम मूवमेंट करते तो हमारे मूवमेंट को क्या करते? लाठी चार्ज करके सप्रेस कर देते हैं, ठीक है ना? तो अभी हमारे पास खूब अच्छा टाइम है, दे आर इन्वॉल्व इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, this is difficult situation for the Britain and we should take advantage of Britain's difficulty। यही वो टाइम है कि ब्रिटेन की डिफिकल्टी का फायदा उठाना चाहिए। इस ओपिनियन को कौन आगे करेगा बताओ? सुभाष चंद्र बोस। he will say that this is the right time। का मैं कह रहा था रिवॉल्यूशन की जरूरत है, टाइम आ गया, यही वो टाइम है जब हमें रिवॉल्यूशन करना चाहिए। और सुभाष will say that we can take help and support of the rival powers of Great Britain। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ब्रिटेन का जो दुश्मन है उससे हेल्प ले लेते हैं और इंडिया से ब्रिटिश को भगा देते हैं। यही राइट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दूसरा ग्रुप जो था वो कह रहा था दैट इंडियन शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ब्रिटेन्स डिफिकल्टी। कौन हो सकता है इस ग्रुप का लीडर? एंड व्हाई गांधी वाज सेइंग दिस? Gandhi was saying India should not take advantage of Britain's difficulty. Why Gandhi was saying this? Gandhi will say that Britain is fighting with Germany, Italy, and they are totalitarian regimes, fascist and Nazi powers, ठीक है ना? अगर गलती से भी ये जीत गए, ऊपर से जापान भी बाद में उनके साथ आएगा, अगर गलती से भी ये जीत गए, इफ दे विल गेट विक्ट्री इन द वॉर, देन व्हाट आर द चांसेस? आप याद करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन का कॉलोनियल पोजीशन है वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा? विक्टोरियस पावर्स के। इट मीन्स आसमान से गिरे खजूर पेट के। पहले हम ब्रिटेन से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और बाद में अगर जर्मनी, इटली या जापान ने कंट्रोल कर दिया तो हमें किससे लड़ना पड़ेगा? इनसे लड़ना पड़ेगा। और इनसे तो बेटर ही है ब्रिटेन, ब्रिटिश लोग इनसे तो ज्यादा बेटर है ना, बिकॉज दे आर नॉट टोटलिटेरियन रिजीम्स, तो उनसे नेगोशिएट करना ज्यादा आसान है। गांधी ने कहा, वो एंटी सेमिटिज्म वाला भूल गए क्या चैप्टर? क्या हुआ जर्मनी में? कहा इट इज इजी टू डील विद द ब्रिटिश इन कंपैरिजन ऑफ डीलिंग विद द जर्मन्स, ठीक है, हिटलर या मुसोलिनी या जापान, इनसे डील करने के बजाय ब्रिटिश के साथ डील करना ज्यादा आसान है। अच्छा, गांधी का ये आर्गुमेंट लॉजिकल था कि नहीं? वाज इट लॉजिकल? हाँ। सुभाष का भी आर्गुमेंट लॉजिकल था कि नहीं? वो भी लॉजिकल था, ठीक है। नाउ द थर्ड ग्रुप विल कम, एंड थर्ड ग्रुप वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। एंड व्हाट जवाहरलाल नेहरू सेड? जवाहरलाल नेहरू सेज दैट India, Britain wants help and support of India, and Indians are ready to give help and support to Britain, but that will be conditioned help and support। मेरी बात समझ गए? इस समय हम ब्रिटेन जो है ना उसे हमारी जरूरत है, और हमारी जरूरत है तो हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन को, लेकिन हमारी हेल्प एंड सपोर्ट क्या होगी? कंडीशनड हेल्प एंड सपोर्ट। और वो कंडीशन क्या होगा? कि पहले इंडिया को आजाद कर दो,
और उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट कंडीशनड हेल्प एंड सपोर्ट। तब महात्मा गांधी ने देखा, कहा हाँ, दिस पर्सन जवाहरलाल नेहरू विल बी माई पॉलिटिकल सक्सेसर। ये बिल्कुल मेरी तरह सोचता है। कितना स्मार्ट तरीका, बीच का रास्ता, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का आइडिया पसंद नहीं आ रहा था गांधी को। ही सेज दैट दिस बॉय विल बी माय पॉलिटिकल सक्सेसर जवाहरलाल नेहरू। ही इज टॉकिंग अबाउट कंडीशनड हेल्प एंड सपोर्ट। इसमें हेल्प एंड सपोर्ट तो है ही ना भाई, ठीक है, नेगोशिएशंस भी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गांधी विल डिसाइड कि नेहरू विल बी हिज पॉलिटिकल सक्सेसर। तो गांधी के बाद उनकी स्पिरिचुअल लेगेसी को विनोबा भावे आगे लेके जाते हैं, और पॉलिटिकल लेगेसी को कौन लेके जाता है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। ये मुद्दा है। तो द ओपिनियन इज राइट हियर, थ्री ग्रुप्स, राइट। ग्रुप वन यहां पे लिख लेना, लेड बाय सुभाष चंद्र बोस। ग्रुप टू लेड बाय गांधी एंड हिज सपोर्टर्स। हियर सुभाष एंड हिज सपोर्टर्स, गांधी एंड हिज सपोर्टर्स, ऐसा भी लिख सकते हो। ग्रुप थ्री लेड बाय JL Nehru and his supporters. Group 1 Subhash Chandra Bose and his supporters. Group 2 Gandhi and his supporters. Group 3 okay, Jawaharlal Nehru and his supporters. So read this. Group 1 says what? That India should take advantage. India should take advantage of Britain's difficulty. India should take advantage of Britain's difficulty. This is the point, that India should take advantage of Britain's difficulty. India should take advantage of Britain's difficulty, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सुभाष का कहना क्या है? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन विच अप्रोच? STV approach, struggle till victory approach. Because the people are already prepared, their mind is prepared for the revolution. लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। The people are already prepared, their mind is prepared for the revolution. तो ये STV approach से होगा। Plus we can also take help and support of rival forces of Great Britain in this process, ठीक है ना। So he's saying that we can also take help and support. We can also take help and support of rival forces of Great Britain, rival forces of Great Britain in this process. We can also take help and support of rival forces of Great Britain in this process, ठीक है ना। इस process में we can take help and support of rival forces of Great Britain. Clear? समझ में आया? दूसरी तरफ आते हैं गांधी। Read this. Britain's difficulty. Read this. What he is saying? He is saying that Britain's difficulty should not be considered as opportunity for Indians. Britain's difficulty should not be considered as opportunity for Indians. Britain's difficulty should not be considered as opportunity for Indians, ठीक है ना। Indians के लिए opportunity इसे नहीं माना जा सकता। What was the logic? ये भी लिखना है। Write this. Reason. Why? Write this. Reason क्या है? तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिख लो यहाँ पे, that Britain on other side, Britain is fighting with Germany, Italy, and these are fascist regimes, totalitarian regimes. These are fascist regimes and totalitarian regimes. So if you compare these two, Britain are more liberal. Britain are more liberal. Britain ज़्यादा liberal. और ब्रिटेन के साथ हम लंबे समय से नेगोशिएशन भी कर रहे हैं कि पावर ट्रांसफर हो जाए। वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है ना। सो गांधी सेज दैट ब्रिटेन आर कंपैरेटिवली मोर लिबरल, they believes in parliamentary process, and we are already in the process of negotiation with the British authorities for the transfer of power. हम already इसके लिए बातचीत कर रहे हैं। British are more liberal, they believed in parliamentary processes, ठीक है, they are comparatively more democratic, and we are already in the process of negotiation. हम already बातचीत कर रहे हैं, so there is a greater probability that some solution will come, ठीक है ना।
इस बात की संभावना है कि कुछ सॉल्यूशन मिलेगा. एंड व्हाट विल हैपन इफ दे गेट विक्ट्री इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सो इट विल मेक द सिचुएशंस मोर डिफिकल्ट फॉर द इंडियंस. ठीक है ना, इससे इंडियंस के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी. नाउ ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि किस आर्ग्यूमेंट के पीछे लॉजिक क्या है. नहीं तो फिर क्या होगा, आप भी दूसरों की तरह बात करो, गांधी ने गलत कर दिया, सुभाष ने गलत कर दिया. हु आर यू टू डिसाइड? ठीक है, देखो क्रिकेट मैच होता है, आप देखते होगे T20 और दूसरे मैच, तो आप घर में बैठे बैठे कहते हो अरे यार कैच छूट गया, इसने अच्छा नहीं किया. खुद होते वहां तो क्या होता. ठीक है, तो दर्शक बन के कमेंट करना ज्यादा आसान होता है. मेरी बात समझ गया ना? बट यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस को हैंडल करना, ठीक है, कैसे, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि सभी लोग एक तरीके से सोचते कि आज़ादी ऐसे मिल जाएगी? क्या आप सब लोग तैयारी करते हो तो सब लोग एक तरीके से, सबकी पढ़ने की स्ट्रेटजी एक जैसी है, टाइम टेबल एक जैसा है? नहीं. मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स हु आर टीचिंग हिस्ट्री. क्या सबके पढ़ाने का स्टाइल और तरीका एक जैसा है? नहीं. सिलेबस तो वही है, सिलेबस इज द सेम. तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सबकी आइडियोलॉजी एक जैसी हो जाएगी? अभी आप सबकी आइडियोलॉजी एक जैसी है क्या? नहीं है. अभी तो हम गुलाम भी नहीं है, फिर भी सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हो. तो थोड़ा ये बात समझनी है. नाउ द थर्ड ग्रुप, राइट, जवाहरलाल नेहरू. राइट, जवाहरलाल नेहरू टॉक्स अबाउट, राइट दिस, जवाहरलाल नेहरू टॉक्स अबाउट conditional help and support. Conditional help and support. Conditional help and support. Talks about conditional help and support. और ये conditional help and support क्या है, समझिए इस बात को. ब्रिटेन नीड्स हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ इंडियन पीपल. ब्रिटेन को इंडियन लोगों की हेल्प चाहिए, किस चीज से? 3M से. 3M क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमने हेल्प सपोर्ट किया था. 76,000, 78,000 इंडियन सोल्जर्स डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये नंबर कम नहीं होता है. ठीक है, आजादी उनकी वजह से भी तो मिली ना, उनको क्यों भूल जाते हो? राइट, 78,000 वाज द नंबर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? क्या बता रहा था मैं? हाँ, मेन, मटेरियल एंड मनी, यही चाहिए ना. मेन मीन सोल्जर्स, young Indians as soldiers, they will help British. Material, अब तो टिस्को भी था, आयरन एंड स्टील भी था हमारे पास, इंडस्ट्रीज भी थी. ठीक है, तो मेन मटेरियल एंड थर्ड मनी. मनी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कहानी याद है? गांधी वॉलंटियर फॉर द कॉज ऑफ सपोर्टिंग ब्रिटिश. चंदा इकट्ठा किया था गांधी जी ने, तो यही तो चाहिए अंग्रेजों को. नाउ जवाहरलाल नेहरू इज सेइंग व्हाट? दैट यू नीड आवर हेल्प एंड सपोर्ट, एंड फॉर दैट we will give you help and support, but this will be conditional. Nehru says conditioned help and support. And what is the condition? Condition क्या है? कि पहले हमें क्या दे दो? आजादी दे दो. Okay, first give us freedom and then we will decide that we will support you or not. So if you give us freedom, we will support you. This is the condition कि आप हमें आजादी दे दो. If you will give us freedom, okay, then we will help and support Britain. एंड वंस वी गेट फ्रीडम देन वी विल डिसाइड. ये भी हम कह रहे हैं कि अभी नहीं कह रहे हैं कि आजादी दे दोगे तो हम आपके साथ ही खड़े हो जाएंगे. अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो क्या होगा? ठीक है, हमने कहा पहले आजादी दे दो एंड देन विल डिसाइड कि क्या करना है. ठीक है, कंडीशनड हेल्प एंड सपोर्ट. ओके, सो राइट दिस. गांधी वाज influenced by this idea. Gandhi was very much influenced by the idea of Jawaharlal Nehru. And here Gandhi decides that Jawaharlal Nehru will be his political successor. And here Gandhi decides that Jawaharlal Nehru will be his political successor. Right? लिख लिया आप लोगों ने? Now I will draw a chart and then I will discuss the events that are to be studied here. वो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिससे हम कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को, नहीं तो फिर उलझ जाएंगे कहानी में. ठीक है ना? So first I am going to draw a chart and then I will discuss with you the story. And what is the chart? Draw this chart in a single page. आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा स्केच मैं ड्रॉ करता हूँ. पहले वाला 1920s में कौन कौन से इवेंट हुए थे, देन 1930s, देन आई विल डिस्कस 1940s, 1920s. ऐसे एक पेज में लिख लो 1920s.
एंड नाउ यू विल टेल मी दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट इन 1920s. अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं तो कैन वी राइट लाइक दिस? कुछ समझ पा रहे हो? व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस? नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. केम मींस खिलाफत मूवमेंट यूटिलाइज द प्लेटफॉर्म फॉर एनसीएम. ठीक है, 1920-22. इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो जाएगा यहाँ? 1923, दैट इज स्वराज पार्टी. ठीक है, और इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो गया? देखो, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए 1920s में नेशनल मूवमेंट में क्या है, 1930s में क्या है, 1940s में क्या है, तो स्केच ड्रॉ करना है और कुछ एक बातें लिख देनी है. सारी कहानी लिखने का मौका हमारे पास नहीं रहेगा, बट ड्रॉइंग द स्केच विल गिव एन इंप्रेशन टू द एग्जामिनर कि आपको चीजें पता है. ठीक है ना? अब यहाँ पे स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स, ये हम लिख सकते हैं, स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स 1923 टू 1928-29. तब तक ये प्रभावी है. Then we can write here another important event, that is what? Simon Commission 1927. Then we can write another important event, that is Nehru Report 1928. And here what is the demand? The demand for dominion status. Why demand for dominion status? समझ गया ना? मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेट ऑफ इलेक्शंस इन 1920 सारे के सारे अंग्रेज भरे हुए थे. ठीक है ना? डोमिनियन स्टेटस. इसके बाद स्वराज था. Here what was the demand of our national movement? स्वराज. यहाँ पे क्या है? स्वराज. Here what is the demand for our national movement? Dominion status. Dominion status है. Got it? Then there is another important event, that is what? Jinnah's 14-point formula. Jinnah's 14-point formula. What is the year? 1929. Jinnah's 14-point formula 1929. ठीक है. यहाँ पे एक और इवेंट लिख रहा हूँ, दैट आई विल डिस्कस लेटर, बट इन द स्केच आई एम ड्राइंग वो चीजें रिलेट होंगी. सो राइट हियर, ओके, राइट दिस, efforts to solve the deadlock between INC and Muslim League. Efforts to solve the deadlock between INC and Muslim League. These two topics I will discuss later. First is Rajgopalachari formula 1944. ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. Read this. Rajgopalachari formula 1944. And the next one is Desai Liaquat talks 1945. The next is what? Desai Liaquat talks. Desai Liaquat talks. The year is 1945. तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला एंड देसाई लियाकत टॉक्स. ठीक है. देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर. ठीक है, शायद कभी प्रीलिम्स में आ जाए, ये भी आपको बता दूंगा. आप इसको कहाँ लिखोगे? नेहरू रिपोर्ट से पहले लिख लो. ये नेहरू रिपोर्ट से पहले आता है. दिस ऑल्सो आई विल डिस्कस विथ यू जब मैं डेडलॉक बताऊंगा. राइट दिस, दिल्ली प्रोपोजल्स. दिल्ली प्रोपोजल्स कभी प्रीलिम्स में आ जाए तो याद रखना, दिस इज बिफोर नेहरू रिपोर्ट. दिल्ली प्रोपोजल्स ईयर इज 1927. दिल्ली प्रोपोजल्स ईयर इज 1927. दिल्ली प्रोपोजल्स ईयर इज 1927. और यहाँ एक पॉइंट लिख लेना, बाई मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना ने ये प्रस्ताव रखा था दिल्ली में. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दिल्ली प्रोपोजल बाई मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है. एंड हियर राइट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे मैं डिस्कस करूंगा. राइट दिस, first time Jinnah was ready to give up his demand for SES. First time Jinnah was ready to give up his demand for SES, separate electorate system. First time Jinnah was ready to give up his demand for SES, demand for separate electorate system. Bracket में लिख लेना, but Indian National Congress rejected Delhi proposals. But Indian National Congress rejected Delhi proposals. But Indian National Congress rejected Delhi proposals. INC ने क्या किया? दिल्ली proposal को reject कर दिया. ठीक है ना? क्या था आपको बताऊंगा. दिल्ली proposal, फिर मैं जिन्नास 14-point formula
राजगोपालाचारी, देसाई लियाकत टॉक, सबको एक साथ जोड़ के बताऊंगा व्हेन आई विल डिस्कस। ओके, कम्युनलिज्म, इंडिया में कैसे कम्युनलिज्म आगे बढ़ा। नाउ व्हाट वी सी हियर, आफ्टर दिस सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नाउ वी कम इन द ईयर 1930s। 1930s, नाउ यू ऑल नो 1930s में क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 1934। 1930s में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलेक्शंस ऑफ 1934। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, इलेक्शंस ऑफ 1937। ठीक है ना। और 1930s में क्या है, ऐसे सोचना है, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सॉल्व पीवाईक्यूज एंड ट्राई टू राइट आंसर। बहुत आसान है, अगर आप समझते हो तो आंसर लिखना इज वेरी इजी। और क्या है 1930s में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इन ब्रिटेन लंदन, राइट दिस, आरटीसीज, आरटीसीज भी तो है ना, 3 आरटीसीज, कब से कब तक, 1930 टू 1932 आरटीसीज भी है। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साथ दो टॉपिक और जुड़ जाता है आफ्टर सेकेंड आरटीसी, व्हाट इज दैट, कॉम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। ठीक है ना। तो 1930s में देर इज टू मोर टॉपिक हियर, आरटीसी के बाद रेड दिस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्युनल अवार्ड एंड द सेकेंड इज व्हाट, पूना पैक्ट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट। 1930s में और क्या है, साइमन कमीशन रिकमेंडेशंस फाइनली appeared in the form of Government of India Act 1935, यही है ना, साइमन कमीशन रिकमेंडेशंस फाइनली appeared in the form of Government of India Act 1935, राइट, ये समझ में आया। और क्या है बताओ इस फेज में, और हम क्या देख रहे हैं, 1939 आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस बीच में हम क्या देख रहे हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एट वर्क, at work, Congress ministries at work. 1939 में what do you see, resignation of Congress ministries. 1939 Second World War starts. So here the another important event is resignation of Congress ministries. Resignation of Congress ministries. Why I have discussed this much? Because now you will practice. कैसे practice करना है समझो इस बात को. Take a rough sheet, sit, and then you will write like this. कि important development between 1880 and 1900. Important development between 1900 and 1920. Important development in 1920. Important development in 1930. Important development in 1940. ठीक है, तो इससे आपको सारे टॉपिक्स याद हो जाएंगे. नाउ आई एम एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, समझो. व्हाट जवाहरलाल नेहरू सेड, जवाहरलाल नेहरू टॉक्ड अबाउट कंडीशनड हेल्प एंड सपोर्ट. जवाहरलाल नेहरू ने इसी चीज की बात की थी. ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. Jawaharlal Nehru talked about conditioned help and support. ठीक है, यानी हमारी कुछ कंडीशंस हैं, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लेगी, we will provide help and support. Got it? So what will happen? British government will give us offers one after another. Why British government is giving us offers? So that our conditions, ठीक है, कि हमारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं वो ऑफर. ब्रिटिश गवर्नमेंट विल गिव अस ऑफर्स वन आफ्टर अनदर. अच्छा, अगर वो ऑफर हमारी कंडीशंस के सिंक में नहीं है तो हम उस ऑफर को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. तो एक ऑफर रिजेक्ट होगा, फिर दूसरा ऑफर आएगा, फिर तीसरा ऑफर आएगा. ऑफर कौन देता है, जिसको जरूरत होती है. ठीक है, आजकल क्या होता है, किसी शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, लिखा रहता है 90% ऑफ, 80% ऑफ. आपको लगता है आज मैं फायदे में आ गया, ठीक है, आज मेरा पैसा बच जाएगा. बच नहीं जाएगा, ठीक है, खर्च हो जाएगा. जरूरत किसको है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट विल, read this, British government will give Indians various offers. They will give Indians various offers. ठीक है, and these offers were rejected by Indians. These offers were rejected by Indians one after another. Okay, British government will give us offers and these offers are rejected by Indians one after another. एक एक करके
वो ऑफर क्या होता चला जाएगा, रिजेक्ट होता चला जाएगा. नाउ राइट द नेम ऑफ सम ऑफर्स. कौन कौन से नाम है, जैसे यू विल राइट हियर वन नेम इज Linlithgow's offer. Linlithgow's offer. यहाँ पे ऑब्लिक लिख लेना अगस्त ऑफर. ठीक है, Linlithgow's ऑफर, अगस्त ऑफर. ठीक है, 1939-40 दोनों ईयर लिखोगे. व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस आई विल डिस्कस लेटर. ठीक है ना, 1939-40 Linlithgow ऑफर, अगस्त ऑफर. ठीक है ना. देन दूसरा ऑफर जो है वो है क्रिप्स मिशन प्रपोजल. The second is Cripps mission proposals or offer. Cripps mission proposals. You all know the year. Cripps mission proposal का year क्या है, 1942. That is Cripps mission proposal. ठीक है. इसके बाद है right Wavell plan. Wavell plan. And the conference in which this plan is discussed is known as Shimla conference. ठीक है, Wavell plan and the conference in which this plan is discussed. वो कॉन्फ्रेंस कौन सा कॉन्फ्रेंस है, शिमला कॉन्फ्रेंस. ईयर इज व्हाट, 1945. वेवेल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस, ईयर इज 1945. देन द नेक्स्ट इज राइट वेवेल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान एंड दिस इज व्हाट, 1946. कैबिनेट मिशन प्लान 1946. and after this Mountbatten plan. Mountbatten plan, that is also known as 3rd June plan. Read this, Mountbatten plan. Mountbatten plan, that is also known as 3rd June plan. क्योंकि इसका डेट क्या है, 3rd June 1947. ठीक है, Mountbatten plan, 3rd June plan. The date is what? Okay, 3rd June 1947. 3rd June 1947. Clear? Now, the next is Indian Independence Act 1947. Indian Independence Act 1947. And these are all are important events during 40s. 1940s. 1940s में होने वाले सबसे important event है. और ये plan क्या है basically? These are set of negotiations before the Indians. And what is the basic purpose? The basic purpose is to solve the deadlock between Indian National Congress and British government. हमारी मांगे कुछ और हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ और दे रही है, हमें नहीं चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगा. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में जो डेडलॉक बना हुआ है, इस डेडलॉक को सॉल्व करने के कई सारे एफर्ट्स हुए और फाइनली उस एफर्ट का कल्मिनेशन किस रूप में हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. ठीक है, तो यहां चाहो तो एक और पॉइंट लिख सकते हो, राइट, दीज आर सेवरल एफर्ट्स, राइट दिस, these are several efforts that were made to solve the deadlock between. These are several efforts that were made to solve the deadlock between INC and British government. ठीक है, 1940s में these are the several efforts that were made to solve the deadlock between INC and British government. ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों के बीच जो डेडलॉक बना हुआ था, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए ये सारे एफर्ट्स हुए. तो अब आपको याद रखना है, मेरी बात समझिए ना, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि डिस्कस द वेरियस एफर्ट्स दैट वर मेड ड्यूरिंग 1940s टू सॉल्व द डेडलॉक बिटवीन आईएनसी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो पसीने छूट जाएंगे अगर आप समझते नहीं हो तो, और समझते हो तो आसानी से लिख दोगे. एक और बात यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, यहीं पे लिख लो, 1940s में efforts that were made to solve the deadlock between INC and Muslim League, पहले भी बता चुका हूँ. वो कौन से efforts हैं, राजगोपालाचारी फॉर्मूला एंड दसाई लियाकत टॉक्स. तो एक बॉक्स में लिख लो उसके बारे में, वो भी 1940s का इवेंट है. read this, 1940s again, 1940s again, efforts that were made to solve the deadlock between INC and Muslim League. This is also an event in 1940s. ठीक है ना, efforts that were made
टू सॉल्व द डेडलॉक बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। दोनों के बीच कौन से एफर्ट्स हुए डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए? तो राइट दिस। वन इज व्हाट? राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1945-44 and the second is Desai Liaquat talks 1945। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच डेडलॉक को सॉल्व करने की कोशिश नहीं हुई, कोशिश हुए, राइट, बट ओके वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। गॉट इट? दीज आर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ओके, फिर एक जनरल इलेक्शन भी है यहाँ, दैट इज इन दिसंबर 1945। तो उसका कोई खास मतलब नहीं है अभी जोड़ने का। इतनी बात आपको समझ में आई? अब यहाँ पे कुछ और चीजें आप ऐड करोगे, देखो क्या है। नहीं नहीं, ये अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू तो नहीं कहेंगे, ठीक है, बट आइडिया वही है, कंडीशनड हेल्प एंड सपोर्ट। तो इसी वजह से नेगोशिएशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लीडरशिप सबकी है। ओके, सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा तरीका अलग है, दैट आई विल डिस्कस नाउ। यहाँ पे एक पॉइंट आप ऐड करोगे और वो क्या है? हियर अ टॉपिक वी विल रीड एंड दैट इज राइट फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर, राइट, फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर resulted in individual satyagraha। Failure of August offer resulted in individual satyagraha, that is also known as limited satyagraha by Gandhi, limited satyagraha by Gandhi। तो ईयर क्या हो जाएगा? 1940। ओके, फेलियर ऑफ लिनलिथगो's offer, अगस्त ऑफर resulted in individual satyagraha, limited satyagraha by Gandhi। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझेंगे। इसी तरह से देखो, when Cripps mission will fail, so which movement will take place here? So write this: failure of Cripps mission resulted in failure of Cripps mission, failure of Cripps mission resulted in quit India movement, that is in the year 1942 to 44। ठीक है, failure of Cripps mission resulted in quit India movement, that is in the year 1942 to 44, quit India movement। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, लिनलिथगो's ऑफर और अगस्त ऑफर, ठीक है ना। एक एक टॉपिक को समझेंगे। नाउ दिस इज द एंटायर टाइमलाइन एंड वी आर गोइंग टू एंटर द टॉपिक। तो देखो, द टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर starts, British government need India's help and support, need India's help and support, and for this, okay, वायसराय इन इंडिया वाज लिनलिथगो। इंडिया में वायसराय कौन था? लिनलिथगो। वायसराय वाज लिनलिथगो, लिनलिथगो। ओके, एंड लिनलिथगो विल गिव एन ऑफर टू इंडियंस। लिनलिथगो क्या करेगा? ही विल गिव एन ऑफर टू इंडियंस। वायसराय वाज लिनलिथगो, एंड व्हाई ही विल गिव एन ऑफर टू द इंडियंस? टू गेट द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ इंडियन पीपल इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, सो राइट दिस। Okay, Viceroy Lithgow will give an offer to Indians, okay, to get help and support of Indians, to get help and support of Indians in Second World War। ये objective, Viceroy Lithgow giving an offer to the Indians, okay, to get help and support of Indians in सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और यहाँ पे एक टेक्निकल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। वायसराय लिनलिथगो ने पहली बार जो ऑफर दिया, वो ऑफर था जैसे ही कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया तो उसने ऑफर दिया। दैट ऑफर वाज इन द ईयर 1939, अक्टूबर मंथ में था। वी डिड नॉट एक्सेप्टेड दैट ऑफर। Then the same Viceroy Lithgow
came with the second offer, and that is in the year 1940. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अगस्त में, दैट केम इन द मंथ ऑफ अगस्त, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अगस्त ऑफर. तो देखो इस चीज को हमेशा याद रखना, बिकॉज दिस विल क्रिएट सम कंफ्यूजन. ठीक है ना, तो वायसराय इज लेनलिथगो, और देखो ऑफर, ऑफर में टू ऑफर्स, राइट दिस, फर्स्ट ऑफर एंड सेकंड ऑफर. ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो तो कभी नहीं कंफ्यूजन होगा. फर्स्ट ऑफर एंड सेकंड ऑफर, ठीक है ना. इफ यू विल ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर तो देयर विल नो एनी कंफ्यूजन. ठीक है, फर्स्ट ऑफर कब है, 1939. सेकंड ऑफर कब है, 1940. 1940. सेकंड ऑफर 1940 के किस मंथ में है, अगस्त मंथ में, अगस्त 1940 में. फर्स्ट ऑफर 1939, यहां मंथ में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है. सेकंड ऑफर को हम क्या कहते हैं, अगस्त ऑफर. अगस्त ऑफर, मेरी बात समझ गया ना, ये भी किसका ऑफर है, लिनलिथगो's ऑफर ही है, बट इन द मंथ ऑफ अगस्त 1940, so this is called August offer. So technically here what we see that there are two offers, दो ऑफर है, पहला और दूसरा. तो ये वाला ऑफर जब फेल होगा, दिस व्हेन, राइट दिस, ये तो हमने ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, वी आल्सो रिजेक्टेड दिस वन, राइट, वी आल्सो रिजेक्टेड दिस वन, दूसरा भी रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, तो दूसरा ऑफर कब है, अगस्त 1940. तो रिजेक्ट होगा, इसके बाद इसके रिएक्शन में क्या शुरू हो जाएगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह. ठीक है ना, ये पहले ये टाइमलाइन बनाइए आप. ठीक है ना, तो दिस ऑफर वाज रिजेक्टेड एंड राइट दिस एज अ response, as a response or as a reaction, okay, individual सत्याग्रह started. यानी अगस्त ऑफर के रेस्पॉन्स में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, और ये कब से कब तक चला, तो अक्टूबर 1940, अक्टूबर 1942, अक्टूबर 1942, दिसंबर 1941, अक्टूबर 1942, दिसंबर 1941. अब देखो ये मंथ मत याद करने लगना आप, मैं क्यों यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ, देखो वाई आई एम राइटिंग अक्टूबर 1940, सो दैट यू कुड रिलेट कि सेकंड ऑफर के रिजेक्ट होने के बाद क्या शुरू हुआ है, इंडिविजुअल सत्याग्रह. और इंडिविजुअल सत्याग्रह में केवल आप इतना याद रखना, 4041. ठीक है, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द मंथ, कोरिलेट कर पाओगे ना इससे, यू कैन कोरिलेट. ठीक है, कि पहला ऑफर क्या था, दूसरा ऑफर इससे बेटर था कि नहीं, तो इससे हमें चीजों को समझने में आसानी होगी. जैसे अब देखो फर्स्ट ऑफर में व्हाट लिनलिथगो इज सेइंग, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस लिनलिथगो's फर्स्ट ऑफर. read this, लिनलिथगो's फर्स्ट ऑफर, लिनलिथगो's ऑफर. अच्छा, फर्स्ट ऑफर की जगह इफ आई राइट हियर 1939, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट लिनलिथगो इज सेइंग. ठीक है, लिनलिथगो इज सेइंग दैट देखो बहला फुसला के इंडियंस को अपने पक्ष में लेना है, द मेन मोटिव इज टू गेट इंडियंस इन देयर सपोर्ट एंड फेवर. सो व्हाट लिनलिथगो इज सेइंग, लिनलिथगो इज सेइंग दैट Britain is fighting this war for a noble cause. We are fighting with totalitarian regimes. We are fighting this war for the humanity. हम किसके लिए fight कर रहे हैं? We are fighting this war for the humanity. And Indians should come forward. And Indians should come forward and help and support Britain in this process. Now again Indians will ask, what is the objective of this war? इस वॉर का उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश शुड से व्हाट, अंग्रेजों को कहना चाहिए द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट हाउ कैन दे से, वो कह ही नहीं सकते थे. व्हेन दे विल से दैट द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, द ऑब्जेक्टिव इज ओके टू एंड द इंपीरियलिज्म, द ऑब्जेक्टिव इज टू एंड द टोटलिटेरियनिज्म. अगर क्लियर बोलोगे देन वी विल से दैट पहले खत्म करो. सो वी इंडियंस वर आस्किंग दैट व्हाई यू आर फाइटिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, आंसर दिस क्वेश्चन. लिनलिथगो सेज व्हाट, ओके, इधर उधर की सारी बात करेगा बट ही विल नॉट डिफाइन व्हाट इज द एम ऑफ द वॉर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर. मेरी बात समझ गया ना, ही विल नॉट डिफाइन व्हाट इज द, जैसे यूएस एंटर करेगा तो यूएस विल डिफाइन कि व्हाई यूएस इज इन द वॉर. यूएस विल से दैट we want to end the imperialism, we want to end the colonialism, we are fighting this war for the restoration of democracy in the countries. इस तरह की बात करेगा.
But Britain is not saying this. Britain is saying that we are fighting this war for a noble cause. These are authoritarian regime. This is not good for the humanity, and we are fighting this war. But why? What is the objective? Lithgow does not make it clear. And second point, what he says is that okay, Indians should come forward, should help and support British government, and when okay, the result will be in the favor of Britain, then Britain will take your demands seriously. इसके बाद ब्रिटेन क्या करेगा? आपके डिमांड्स को क्या करेगा? सीरियसली लेगा. ये कौन सी बात हुई? इसमें कुछ मिला क्या आपको? कुछ मिला? हैव यू गॉट एनीथिंग इन लिथगोस सजेशंस? कुछ नहीं मिला आपको. ओके, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं. देयर इज नथिंग इन दिस लिथगोस ऑफर. ओके, नाउ तो राइट दिस पॉइंट. ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो इसको. ओके, इसमें कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग. सो राइट 2 पॉइंट्स हियर. राइट. ओके, लिथगो requested Indians to help and support Britain in Second World War. Requests Indians to help and support Britain in Second World War. Requests Indians to help and support Britain in Second World War. In Second World War, stating that Britain is fighting for a noble and just cause. Stating that Britain is fighting for a noble and just cause. Stating that Britain is fighting for a noble and just cause. ठीक है, ब्रिटेन नोबल एंड जस्ट कॉज के लिए फाइट कर रहा है. राइट. नेक्स्ट पॉइंट, दैट लिथगो did not define or did not made it clear what war aims. ठीक है ना, लिथगो did not made it clear war aims को उसने क्लियर नहीं किया. ठीक है ना. रिक्वेस्टेड इंडियंस, ठीक है, that Britain is fighting the Second World War, noble and just cause. So what is the war aims? He did not define. लिथगो did not define what is the war aim. war का उद्देश्य क्या है, युद्ध का उद्देश्य क्या है? He did not define. ठीक है ना. Now the next point. Right. Next point, that once the war will be ended, once the war will be ended, British government will consider the political demands of Indians in a more serious manner, or they will take action on your political demands. Okay, they will consider your political demands seriously once the war is over. ठीक है. आईएनसी लीडर्स ने कहा यार गजब बेवकूफ बनाया भाई. मिला क्या इसमें? ठीक है, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला. ओके, तो ये तो ऐसे ही बेकार है. क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं बनेगा. देयर विल बी नो एनी क्वेश्चन. क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्या? नो. तो लिख लो नो क्वेश्चन. यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं फॉर्म हो रहा. नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट? राइट, अगस्त 1940 ऑफर मेड बाय लिथगो. वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है. राइट दिस, अगस्त 1940 ऑफर मेड बाय लिथगो. अगस्त 1940 ऑफर मेड बाय लिथगो. अब लिथगो को डांट पड़ी होगी उधर से कि भाई कुछ तो करो, यू आर वायसराय, इंडियंस का हेल्प एंड सपोर्ट लो. ठीक है, उनको थोड़ा बहलाओ फुसलाओ. ठीक है, कैसे भी करके उनको तैयार करो. देन द नेक्स्ट टाइम व्हाट लिथगो सेड. लिथगो अगली बार क्या कहता है देखो. राइट, ऑफर में पहला पॉइंट क्या है? ये क्या कहता है देखो. सुप्रीम बॉडी कौन थी? गवर्नर जनरल. यू ऑल नो गवर्नर जनरल और वायसराय वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन. और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी. ठीक है, और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प एंड सपोर्ट से गवर्नर जनरल डिसीजन लेता था. What लिथगो is saying कि we will do what? He is saying that suppose this is Governor General and this is, suppose these are Executive Council. Structure क्या था? I will discuss it later. This is Executive Council of Governor General. Executive Council of Governor General. What लिथगो is saying? We will do what? Expansion of this Executive Council. हम क्या करेंगे? Expansion. इसका मतलब क्या होगा? Number of members will be increased. And more Indian members
will be part of this Governor General's Executive Council. ये था कि गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का साइज एक्सपेंशन होगा, more numbers, more members, more new members will be added, and here we will ensure the adequate representation of the Indian people. हम क्या कहेंगे? What will say? What we are demanding? Complete independence. And what you are giving? हम क्या मांग रहे हैं? What is the demand of Indian national movement in 1940? क्या है डिमांड भाई बताओ? 1930 से ही हमारी डिमांड क्या है? अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, ठीक है? एंड व्हाट दे आर ऑफरिंग अस, व्हाट ब्रिटिश इज ऑफरिंग अस, ठीक है? दे आर ऑफरिंग अस एक्सपेंशन इन गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो हम कहेंगे भाग जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए हमें, राइट? एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ओके, read this, okay, right. About dominion status, about dominion status, British government will seriously think, British government will seriously think after Second World War. बहुत मजेदार है लाइन. About dominion status, British government will seriously think after Second World War. इसमें मजेदार बात क्या है? Lilithgow is not saying कि we will give you dominion status after Second World War. कहा we will think about this. डोमिनियन स्टेटस हमने कब मांगा था? 1920. 1930 में तो हम डोमिनियन स्टेटस छोड़ के व्हाट वी आर डिमांडिंग? कंप्लीट इंडिपेंडेंस. नाउ व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग कि we will seriously think about dominion status. They are not saying that we will give you dominion status. अभी भी क्या कह रहे हैं? हम सोचेंगे इस बात पे कि डोमिनियन स्टेटस दे कि नहीं. फिर हम क्या कहेंगे? भाई बेवकूफ ना बनाओ, 1928 में डोमिनियन स्टेटस मांगा था, 1930 से वी आर डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड नाउ यू आर सेइंग दैट यू विल थिंक. आप सोचोगे डोमिनियन स्टेटस के बारे में, तो ये तो ऑफर हमें रिजेक्ट करना ही पड़ेगा. हम कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? गॉट इट? राइट. थर्ड पॉइंट, राइट, third point, right. Lilithgow said that a war advisory council will be set up. Lilithgow said that a war advisory council will be set up, and there will be Indians in this council. A war advisory council will be set up. There will be Indians in this advisory council, and this council will take decisions about, this council will take important decisions like war. A war advisory council will be set up. There will be Indians in this war advisory council, and this council will take important decisions like war. लेकिन ये काउंसिल कब बनेगी? आफ्टर वॉर. मामला तो अभी ये वॉर हैज स्टार्टेड, यू वांट इंडियन सेल्फ एंड सपोर्ट, यू आर सेइंग दैट वॉर जब खत्म होगा फिर हम काउंसिल बनाएंगे, उसमें इंडियंस को लाएंगे, और तब हम इंडियन से पूछेंगे कि बताओ भाई इंडिया को वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं. हमने कहा गजब बेवकूफ बना रहे हो, वॉर कब खत्म होगा पता ही नहीं है. वो तो हमें पता है ना कि वॉर 1945 में खत्म हो गई. 1940 में किसको पता था कि वॉर रिजल्ट क्या होगा? टुडे वी नो दैट ब्रिटेन वाज द विक्टोरियस. 1940 में किसी को थोड़ी ना पता था कि वॉर रिजल्ट विल इन द फेवर ऑफ जर्मनी, जापान और ब्रिटेन. किसी को नहीं पता था. एंड दे आर सेइंग दैट जब वॉर खत्म हो जाएगा तो वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे, अगली बार से पूछेंगे, इस बार नहीं. इस बार हमने जो डिसीजन ले लिया है वही डिसीजन है. और लास्टली झगड़ा लगाने वाला फॉर्मूला क्या है? वी विल गिव फुल वेट टू द माइनॉरिटी ओपिनियन. माइनॉरिटी राइट्स के साथ किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ये क्या है? चेक एंड बैलेंस, अपीजमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को वीक करने की साजिश. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज Lilithgow expressed its commitment. Lilithgow expressed its commitment that it will give full right to the minority opinion. अच्छा, इससे हिम्मत बढ़ेगा कि नहीं मुस्लिम लीग का? तभी तो 1940 में जाके मुस्लिम लीग कहेगी टू नेशन थियरी. सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम से आगे बढ़ के मुस्लिम लीग विल से टू नेशन थियरी. क्यों? क्योंकि पीछे से भड़काने का काम कौन कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट. वी विल गिव फुल वेट टू द माइनॉरिटी ओपिनियन. नाउ माइनॉरिटी ओपिनियन चेंजेस. माइनॉरिटीज विल से अब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए? अलग नेशन चाहिए, पाकिस्तान. नाउ टेल मी दैट हु इज रिस्पांसिबल फॉर इंडियाज पार्टीशन. ध्यान से देखो. वी ऑल वेयर प्रे और विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स का शिकार था.
हर ग्रुप शिकार था, मुस्लिम्स भी शिकार थे. मुस्लिम लीग वाज अ टूल, ओके, और पार्ट ऑफ दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स. ठीक है. नाउ टेल मी दैट दिस ऑफर विल बी एक्सेप्टेड बाय इंडियंस और रिजेक्टेड. आप एक्सेप्ट करते क्या उस समय होते थे? नहीं एक्सेप्ट करते, कहते और मैं 1930 से मांग रहा हूँ पूर्ण स्वराज एंड यू आर गिविंग अस दिस, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट. अच्छा, गुस्सा भी आएगा कि एक तो ये मजबूरी में है, हमसे मदद मांग रहे हैं, और मदद भी ऐसे मांग रहे हैं जैसे हाथ में तलवार लेके कोई खड़ा और कह रहा हो बताओ मेरी हेल्प करोगे कि नहीं, हमें तुम्हारे हेल्प की जरूरत है. ये तो बिल्कुल वैसे मदद मांगना होगा. तो गुस्सा आएगा हमें. तो सारे लीडर्स भागे भागे जाएंगे गांधी बाबा के पास एंड दे विल से गांधी बाबा अंग्रेजों का कुछ तो करना पड़ेगा यार. ठीक है, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे. गांधी विल से क्या हुआ? लिनलिथ को ऑफर पढ़ा आपने, व्हाट दे आर ऑफरिंग अस? Nehru is saying that conditioned help and support. British will give us offer, and what are the offers that they are giving us? These are nonsense offers. Okay, it means they are not serious to the India's political demands. Now we want that the third mass movement should be launched. तीसरा mass movement करो. You will be the poster boy again. Gandhi will be the leader of this movement. Gandhi Baba कहे कि ना, Britain's difficulty should not be turned into opportunity for the Indians. अंग्रेजों का जो मुसीबत है वो इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटी कभी नहीं होना चाहिए. तो दिस टाइम वी विल नॉट लॉन्च फुल सत्याग्रह, दिस टाइम वी विल लॉन्च लिमिटेड सत्याग्रह. लोगों ने कहा गांधी बाबा कॉन्सेप्ट भी बता दो, कंफ्यूज मत करो. अभी तक तो हम सत्याग्रह ही ठीक से नहीं समझ पाए थे. नाउ यू आर सेइंग फुल सत्याग्रह एंड लिमिटेड सत्याग्रह. नाउ गांधी विल डिस्कस दैट व्हाट इज दिस लिमिटेड सत्याग्रह. तो देखो, दिस वाज रिजेक्टेड, राइट? दिस लिनलिथगो ऑफर, अगस्त ऑफर 1940 was rejected, and as a reaction of this, individual satyagrah or limited satyagrah started. Individual satyagrah or limited satyagrah started 1940 to 41. Limited satyagrah और individual satyagrah started. तो देखो ये इंडिविजुअल क्यों कह रहे हैं, लिमिटेड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज प्रीवियसली व्हाट वी स्टडीड दैट वन कॉन्सेप्ट वाज सत्याग्रह. सत्याग्रह, ठीक है, फुल सत्याग्रह. गांधीयन मूवमेंट जो भी थे वो कैसे मूवमेंट से, बताओ? मास मूवमेंट्स, दे वर द मास मूवमेंट्स. ठीक है, जिसमें तो मास मूवमेंट्स आर लाइक फुल सत्याग्रह. एंड दिस टाइम गांधी इज सेइंग दैट फुल सत्याग्रह अंग्रेजों पे अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करेगा. ठीक है, तो हमें उनको परेशान भी नहीं करना है, उन्हें उनके ऊपर एक दबाव भी बना देना है. वी हैव टू माउंट अ प्रेशर आल्सो. ठीक है, एंड वी विल गिव अ पॉलिटिकल मैसेज आल्सो थ्रू दिस मूवमेंट. नाउ द पीपल आस्क व्हाट इज दिस. Gandhi said that this is limited satyagrah. It means this is not mass satyagrah. पहली चीज, ये मास सत्याग्रह नहीं है. यहां पे मास की जगह कौन सा वर्ड यूज किया गया? इंडिविजुअल. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ओके, mass mobilization is not needed here. Why individual? Because mass mobilization is not needed here. Mass mobilization is not needed here. It will be done on an individual basis. ये individual basis पे होगा. Mass mobilization is not needed here. It will be done on individual basis. कैसे individual basis पे होगा? जैसे from where you belong, विपिन आप कहाँ से belong करते हैं? उत्तराखंड से हैं शायद, हरियाणा. ठीक है, तो विपिन इज फ्रॉम हरियाणा. सपोज हाउ विपिन विल be a part of this individual satyagraha. So from Haryana, from his village, he will start this satyagraha. आपको अपने गांव से, फ्रॉम योर विलेज, फ्रॉम योर होम, यू विल स्टार्ट दिस सत्याग्रह. अपने घर से सत्याग्रह शुरू करोगे. यू विल डिलीवर एन एंटी वॉर स्पीच. अपने घर के बाहर जो चाय की दुकान है वहां चले आओ. ठीक है, एक कप चाय पियो और स्पीच दो. अकेले 2-4 लोग बैठे हुए हैं, उनको बताओ कि इंडिया इज नॉट विथ ब्रिटेन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इंडिया ब्रिटेन के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं है. और ये स्पीच देते देते आप हरियाणा से दिल्ली की तरफ बढ़ो. रास्ते में जितनी चाय की दुकान है हर जगह एक कप चाय पियो और ये स्पीच दो. कौन सा स्पीच? एंटी वॉर स्पीच. और आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हरियाणा से चलते हुए आपको कहां पहुंचना है? दिल्ली. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दिल्ली चलो मूवमेंट. फ्रॉम हरियाणा you will start, you will deliver speech. The nature of the speech will be anti-war speech. Okay, जितने लोगों को एड्रेस कर सकते हो करोगे और you will just move towards Delhi.
यू विल कीप मूविंग अंटिल यू आर अरेस्टेड। जब तक पुलिस वाले आपको अरेस्ट न कर ले जाए तब तक आपको स्पीच देते हुए आगे बढ़ना है। एंड नाउ आकाश विल डू द सेम फ्रॉम, आकाश ये काम कहाँ से शुरू करेंगे? फ्रॉम वेयर? मुंबई से। एंड पूजा विल स्टार्ट दिस फ्रॉम कहाँ से? राजस्थान। बीजे विल स्टार्ट दिस फ्रॉम, कोई उड़ीसा से स्टार्ट करेगा, ओके। समवन विल एल्स विल स्टार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया। और इसमें क्या करना, अकेले ही चलना है। घर से निकल लिए, स्पीच दे रहे हैं, एंटी वॉर स्पीच, इंडिया इज नॉट विद ब्रिटेन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और कहाँ पहुंचना है? दिल्ली तक पहुंचना है। हालांकि पुलिस बीच में ही आपको अरेस्ट कर लेगी। दिस इज कॉल्ड दिल्ली चलो मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इससे एक मैसेज जाएगा ग्लोबल लेवल पे कि इंडियंस आर नॉट सपोर्टिंग ब्रिटेन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर होगा, प्रेशर विल माउंटेड ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कम विद सम सीरियस ऑफर। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ सीरियस ऑफर के साथ आएगी। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटेड, लिमिटेड समझ गया ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल, ठीक है। सो दिस सत्याग्रह कंटिन्यूड, बट वेरी सून द वॉर इक्वेशंस चेंज्ड एट ग्लोबल लेवल। वॉर इक्वेशंस बदलने लगे, ठीक है। हिटलर, हिटलर ने क्या किया? फ्रांस को हरा दिया, ठीक है। ब्रिटेन की हालत खराब हो गई, ऐसा लगने लगा कि ब्रिटेन इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिफीटेड, ब्रिटेन हार जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 1941-42 का जो टाइम था, वहां जर्मनी इतना पावरफुल है कि ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन हार जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ गांधी विल से दैट अब ज्यादा इंडिविजुअल सत्याग्रह करने की जरूरत है नहीं, नहीं तो अगर ब्रिटेन हार गया तो हमारी हालत कैसी हो जाएगी? आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो धीरे धीरे इंडिविजुअल सत्याग्रह की इंटेंसिटी को क्या कर दो, कम कर दो। तो हम भी धीरे धीरे शांत हो गए, क्योंकि ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा था, और ब्रिटेन का कमजोर पड़ना इंडिया के लिए क्या हो सकता था? खतरनाक। So this individual satyagraha gradually declined. This is the concept of individual satyagraha. Now there are two popular facts in this individual satyagraha. Who was the first satyagrahi? You all know this. विनोबा भावे was the first satyagrahi, और वही गांधी के क्या है? स्पिरिचुअल सक्सेसर भी है, ठीक है ना। एंड सेकेंड सत्याग्रही was जवाहरलाल नेहरू, who later become the political successor of Gandhi, ठीक है ना। So that is an important point. Have you understood this concept? What is individual satyagraha? केवल कीवर्ड्स नोट कर लेना। ऑन एन इंडिविजुअल सत्याग्रह, दिस वाज नॉट अ मास मूवमेंट, it will start on an individual basis, right? People will start from their villages, okay, delivering anti-war speech. The objective is to move towards Delhi until you are arrested. This is also called Delhi Chalo movement. What was the objective? Objective was to mount a pressure on the British government, and at the same time not to create trouble for the British government. मतलब प्रेशर भी बना दे और ट्रबल भी ना क्रिएट करे उनके लिए। तो ये एक कह सकते हैं कि मिडिल पाथ तरीका था इंडिविजुअल सत्याग्रह का, ठीक है। फाइनली व्हाट हैपेंड, लेट दिस सत्याग्रह डिक्लाइंड, इंडिविजुअल सत्याग्रह डिक्लाइंड, वी सी इंडिविजुअल सत्याग्रह डिक्लाइंड, ओके, ग्रेजुअली इंडिविजुअल सत्याग्रह डिक्लाइंड ग्रेजुअली, ठीक है। मोर देन 25,000 सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड, जो स्पीच देते हुए चले थे, ठीक है। मोर देन 25,000 सत्याग्रहीज वर arrested, more than 25,000 satyagrahis were arrested, right? The first satyagrahi to be arrested was Vinoba Bhave. The first satyagrahi to be arrested was Vinoba Bhave, and the second satyagrahi to be arrested was Jawaharlal Nehru. देख लो, वैसे सेकंड टॉपर का नाम को याद नहीं रखता। First satyagrahi that was arrested was Vinoba Bhave, and the second satyagrahi was arrested was Jawaharlal Nehru, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, who was the second satyagrahi, so you must know, okay। चलिए, and why these individual satyagraha stopped? It gradually declined due to the changing war, right? This individual satyagraha gradually declined due to the changing war situation. Britain's position in the war was weaker, okay, it gradually declined due to the changing war situations. Britain's position in the war was weaker. Britain position in the war was weaker. ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन? क्रिप्स मिशन। इसके बाद क्या होगा? हाँ, यस प्लीज।
it's like similar because you are going to be arrested, you know that you will be arrested. जो जितने ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट पे एक प्रेशर पड़ेगा, और ये सत्याग्रह ही है, यू आर नॉट यूजिंग वायलेंस, प्लस ये मास मूवमेंट भी नहीं है। मेरी बात समझ गया ना? तो दिस इज द सेम। ओके, नाउ आफ्टर दिस द आई टोल्ड यू दैट द ब्रिटेन पोजीशन वाज वीकर, Britain position was weaker. And now in this situation, Britain seriously needs India's help and support. Seriously needs India's help and support. So will they come with a comparatively more serious terms? Negotiation में कुछ और थोड़ा गंभीरता से तो बात करेंगे ना? So this time, right, this British government will give us another offer. Another offer. अब दूसरा ऑफर हमारे पास आएगा. British government will give us another offer. Okay. And this another offer, right? A mission was sent to India, and the chairman of this mission was Stafford Cripps. ठीक है ना? Stafford Cripps. ठीक है? A mission was sent to India. That is Stafford Cripps mission. Okay, they will discuss with Indian political parties and representatives, and finally, in 1942, they will come with some proposals for Indian people so that we could give them help and support. तो कुछ proposals के साथ आते हैं, और ये टाइम है March 1942, and that is called Cripps mission offer. Cripps mission offer. They will come with some proposals. ठीक है? और ये क्या है, पहले से थोड़ा सा ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली. ओके, क्रिप्स मिशन. नाउ ओके, व्हाट आर द प्रपोजल्स ऑफ दिस क्रिप्स मिशन? यू नीड टू अंडरस्टैंड. लिनलिथगो ने क्या कहा था? डोमिनियन स्टेटस के बारे में सोचेंगे. लिनलिथगो डिड नॉट सेड दैट वी विल गिव डोमिनियन स्टेटस. ये नहीं कहा था ना? ठीक है, नाउ 10 मिनट्स आर लेफ्ट. चलो जितना कर लेते, एक कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाएगा. सो राइट दिस क्रिप्स मिशन प्रपोजल में फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजल वाज, एंड क्रिप्स मिशन से प्रीलिम्स क्वेश्चन यू कैन गेट, प्रीलिम्स क्वेश्चन राइट, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस मेंस. ठीक है, क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट फॉर बोथ. तो पहला इसमें है डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस, this is the most important point. Dominion status. Okay, and now what Cripps mission is saying? Cripps mission is saying that, okay, once the war will be over, once the war will be over, जब war खत्म होगा, then British government will give India what? Dominion status. इंडिया को क्या दे देना है? डोमिनियन स्टेटस. यहाँ पे सीधी सीधी ये बात कही गई कि जब वॉर खत्म होगा तो हम इंडिया को क्या दे देंगे? डोमिनियन स्टेटस दे देंगे. लिनलिथगो ने तो मजा लिया था, कहा था हम सोचेंगे डोमिनियन स्टेटस के बारे में सीरियसली. तो उससे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है ना, कहा हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे. बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बताओ प्रॉब्लम क्या है? यू आर गिविंग अस डोमिनियन स्टेटस. नाउ देखो, गांधी विल डू व्हाट? गांधी विल से रिजेक्ट करो, वी डोंट एक्सेप्ट दिस. व्हाई? गांधी सेज दैट नेहरू रिपोर्ट 1928 डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस, आपने दिया नहीं. ठीक है, फ्रॉम 1930 नाउ वी आर फाइटिंग फॉर व्हाट? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो जो डिमांड हमारी 1928 में थी, वो डिमांड आप कब दोगे? वंस द वॉर विल बी ओवर. और हियर द सिचुएशन इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटेन. 1942 में ब्रिटेन की हालत खराब है वॉर में, ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन ही हार जाए. तो गांधी बाबा ने क्या कहा? गांधी बाबा सेड दैट दिस इज लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक. व्हाई पोस्ट डेटेड चेक? ठीक है, 1928 में डिमांड थी और आप एक्सेप्ट कब कर रहे हो? ठीक है, once the war will be concluded. So Gandhi said that this is like post dated check. पोस्ट डेटेड चेक, ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है. अब आप मतलब समझ गया ना पोस्ट डेटेड चेक का. फिर गांधी ऑल्सो सेज दैट पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फेलिंग बैंक और क्रैशिंग बैंक. दिस इज पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फेलिंग बैंक और क्रैशिंग बैंक. तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया.
There are other provisions as well, और भी provisions हैं. Gandhi said that this is like giving a post-dated check of a failing bank or crashing bank. Why we are calling it failing bank or crashing bank? क्योंकि यहाँ पे war में exactly it's not clear that who is going to be victorious, or Britain's position in the war is weaker, and that's why we are calling it failing bank or crashing bank. And this is like post-dated check. Why post-dated check? Now 1942 Cripps mission is saying that we will give you dominion status after the conclusion of war. This we demanded when 1928. तब तो आपने दिया नहीं, और अब आप देने की बात कर रहे हो, वो भी ऐसा नहीं. आपको तो ये कहना चाहिए कि हम आपको अभी डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं. बट व्हाट यू आर सेइंग, वंस द वॉर विल बी ओवर. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस वाज रिजेक्टेड. तो ये हमेशा याद रखना, डोमिनियन स्टेटस देने की बात कहाँ की गई थी? क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स में 1942 में. ठीक है, हमने इसको क्या किया, आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया. और मुस्लिम लीग क्या करेगी? मुस्लिम लीग अपना लेंस लगा के ढूंढेगी पाकिस्तान है कि नहीं, क्योंकि 1940 से टू नेशन थ्योरी, दे आर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान. का यार डोमिनियन स्टेटस में पाकिस्तान तो दिख ही नहीं रहा है कहीं, तो रिजेक्ट करो इसको. ठीक है, उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए. तो ये पहला प्रोविजन है. देयर आर अदर प्रोविजंस एज वेल, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है ना. एंड दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. और जब ये पढ़ाऊं, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है. मेरी बात समझ गया ना? क्वेश्चन बैंक आपके पास है. इंडिविजुअल सत्याग्रह टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए हैं सर्च करके सॉल्व करो. और थोड़ा चैट जीपीटी भी यूज करना सीखो. हालांकि चैट जीपीटी में भी इनएक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, कई बार फैक्ट्स गलत हो जाते हैं. जैसे इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, आप देखोगे तो उसमें सेम कंटेंट दोनों में डाल दिया, एंड दे वेरी मॉडरेटली एक्सेप्ट कि गलत हो भी सकता है, तो क्रॉस चेक करो. बट यू शुड ट्राई टू यूज. अब वो कंटेंट वाला जमाना चला गया. मैं बहुत पहले से कहता हूँ ना कि दिस इज एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड. आपको कंटेंट इजिली अवेलेबल. वन नेशन वन इलेक्शन आपको पढ़ना है, गूगल सर्च करो, तमाम कंटेंट आ जाएंगे. बट व्हाट इज मिसिंग, कि आप बातचीत करो, डिस्कोर्स करो, ओपिनियंस पे डिस्कस करो, तब आपका थॉट प्रोसेस बेहतर होगा. ठीक है ना. जैसे आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से, कि क्वेश्चन से प्रीलिम्स क्वेश्चन फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो 4-5 क्वेश्चन बन के आ जाएंगे. ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, और गलतियां हो सकती है वहाँ, बट स्टिल कितनी हो सकती है? 10%, 5%. ठीक है, तो वो तो अब आप फिल्टर कर लोगे ना. इफ एनी इंफॉर्मेशन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, यू कैन जस्ट डू अ फैक्ट चेक. ठीक है ना. तो वी शुड गो विद दैट. तो ये बात आप समझ गए. नाउ द रिमेनिंग पार्ट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है ना. एंड डू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज. जितने क्वेश्चन आए क्लास के साथ साथ फिनिश करो, तो फिर एग्जाम में गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे. और अभी आप पढ़ रहे हो नवंबर, आपको एग्जाम तक याद रहेगा जो कुछ भी पढ़ोगे. ठीक है, इसीलिए एंशिएंट को हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज इन एंशिएंट यू विल फाइंड मेनी न्यू वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज. ठीक है ना. तो थोड़ा मतलब वो ताजा ताजा रहेगा, तो ज्यादा फायदा होगा आपको एग्जाम में. ओके, तो मॉडर्न इंडिया तो जो पढ़ के आप रख दोगे एक बार, यू विल रिकॉल दिस इन एग्जाम, देयर विल बी नो नीड ऑफ रिवीजन. तो ऐसे तैयारी करनी है कि देयर शुड बी नो एनी नीड ऑफ रिवीजन. मार्च या अप्रैल में आपको रिवाइज नहीं करना मॉडर्न इंडिया का. ओके, सो डू रीड लाइक दैट. नहीं तो फिर अगर आपको अप्रैल में रिवाइज करना हुआ, तो इतने डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. जो काम करना है अभी करो. ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. वेलकम.